Hello everyone. In last video we were doing chapter and our environment from biology, and today we will continue that chapter with the topic ecosystem and its components. So let's get started. Ecosystem and its components. All the interacting living organism. Interacting means all the living organisms interact with each other in a particular area together with non-living components. Like we can have example like we eat fruit when it is hanging on plant. We can assume it as a living, but when it is broken down, we think it as non-living only. So we interact means we eat that and get energy, means it's a kind of interaction. So living and non-living organisms forms our ecosystem. This is what it's told in the first sentence. So an ecosystem consists of both biotic living creatures, biotic which means living creatures, and abiotic components like temperature, rainfall, rain, etc. All living organisms are classified on the basis of nutrition. Okay, तो living organism हमेशा उनके nutrition के basis पे classified होते हैं. So first is producer. Producer are plants. As we know, plants are producers. Simply, हमने lower classes में भी पढ़ा है कि plants are producers. All green plants, blue-green algae can produce their food. Plant फूड के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगर एंड स्टार्च from organic substance. They use organic substance which is light energy. They get light energy from sun. They do photosynthesis and make food. Okay, these are the one which make food for others and themselves also are called producers. Second is consumer. Include organism which depend on producers. Means, see, here we can observe an image. Oh, it's being first we'll read it, okay, then I will explain. Include organism which depend on producers. Producers are plants. We can have a plants as a producer, directly or indirectly, for their sustenance. कंज्यूमर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड. ओके, कंज्यूमर हमेशा किसी और पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए. सो दिस इज अ प्लांट्स, दिस ऑल आर प्लांट्स. लेट मी चेंज द इंक so that you can visible properly. This is all our plants. This is a consumer, right? And plants are producers. So plants make food by photosynthesis for themselves also and for others also. So वो दूसरे के लिए वैसे बनाते तो नहीं है, लेकिन उनमें जो स्टार्च के रूप में एक फ्रूट या वो सब चीज़ें होती है दैट वी ईट, वो दैट्स द वन थिंग दैट वी ईट. मतलब उनका जो बचा कुचा वेस्ट निकलता है ना, वो हम खाते हैं. दैट्स ऑल. Okay, so this is the interaction of two organisms. Like plant make a food and rabbit eat. This is a simple form. Third are decomposers. Decompose means we can say that simple words में सॉइल के साथ मिल जाते हैं. सॉइल के साथ मिल जाना, लाइक आई टोल्ड यू, वो कंबाइन होकर सॉइल के साथ मिक्स होकर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं. दैट्स अबाउट डिकम्पोजर्स. फंगी एंड बैक्टीरिया विच break down means breaking down is a break down the dead plants. Animal complex
compound into the simpler. उनका सबसे important thing that we have to remember is they just break down food. See, I'll help you. It's भर गया पूरा, so मैं आपको बताती हूँ. Let's use highlighter so that you can. पहले तो decomposers हम याद रखेंगे. Decomposers फंगाई एंड बैक्टीरिया एग्जाम्पल है. ब्रेक डाउन करते हैं विच मीन्स डिकम्पोज करते हैं. डेड प्लांट्स मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को. एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हैं? इन द सिंपलर फॉर्म. ओके, एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन. उनका जस्ट नाम है ब्रेक डाउन फॉर्म. अगर सिंपली हम देखना चाहते हैं थर्स्ट द डिकम्पोज हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट, मतलब सब क्लीन करने में हेल्प करते हैं हमें डिकम्पोजर्स. सी एग्जाम्पल इज मशरूम. एग्जाम्पल है इसका. डिकम्पोजर फीड ऑन रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल का वेस्ट और जो डेड डिकेड मटेरियल होते हैं ना, जैसे कोई समथिंग विच इज़ डेड लाइक एनिमल का कोई पार्ट है ना, दैट वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको खाते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर कंपाउंड में वो लोग हम एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं. डिकम्पोजर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम. वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि दे क्लीन आवर एनवायरनमेंट. यस, by digesting dead matter, they put nutrition back in the soil and making them available to producers. Okay, so this cycle going on. See, I'll explain you some much better. how all the organisms are depend on one another. वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है. See, अब if we हम प्लांट्स ले. सॉरी बच्चों, आज मेरी पेन ठीक से चल नहीं रही, बट आई ट्राई टू राइट इट मच बेटर. आई एम सॉरी, मच बेटर. प्लांट्स का जो फूड होता है वो हम एनिमल्स खाते हैं, कंज्यूमर खाते हैं, और कंज्यूमर का जो फूड होता है, कंज्यूमर का जो वो जब मर जाते हैं when they get dead, तो वो लोग को डिकम्पोज़र खाता है. और वो डिकम्पोज़र क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, और उसको सिंपल में ब्रेक करते हैं. मीन्स उनको खा के जो उनका वेस्ट निकालते हैं वो फिर से कहाँ जाता है, इट गोज़ इन सॉइल. और सॉइल का जो न्यूट्रिशन इनको जो मिला वो फिर से कौन यूज़ करेगा? प्लांट्स. तो दिस साइकिल गोज़ ऑन लाइक वन टू अनदर टू वन. Okay, so let's move forward. Steps. Food chain. Now it's a very important for our chapter. Food chain. It is a sequence of life of living organism in which one organism consumes another organism for energy. Food chain, again we'll highlight it. Highlight करते चलो, मज़ा आता है ना. फूड चेन, अगर हम इट इज़ अ सीक्वेंस. ओके, एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है. किसके लिए? एनर्जी के लिए. ओके, एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है. किसके लिए? एनर्जी के लिए. That's all about. ये definition is very important. Okay, it is unidirectional. कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है. Okay, oh sorry, it's only one directional. Unidirectional, only one direction. चलिए देखते हैं इमेज देखने में मज़ा आता है सबको, समझ में जल्दी आ जाता है ना, इसलिए. देखो, सन की एनर्जी प्लांट ने यूज़ की. प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया. फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसने फूड बनाया. वो फूड ग्रास हॉपर ने खाया. वो ग्रास हॉपर को एक बर्ड ने खाया, एक चिड़िया, छोटी सी ब्यूटीफुल सी चिड़िया ने खाया. फिर वो चिड़िया को एक सांप खा गया. यार बेचारी चिड़िया, सांप खा गया.
और सांप को, अच्छा हुआ सांप को भी चील खा गया, आउल खा गया सांप को बेचारी को। नहीं ऐसा आई कुडंट से दैट, बिकॉज अगर सांप को कोई खाएगा ही नहीं चिड़िया को, तो चिड़िया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा हुआ कि सांप ने चिड़िया को खा लिया। इसमें वी कैन हैव अ एनर्जी लेवल दैट विल लर्न फर्दर in a food chain. In a food chain, various steps where transfer of energy take place is called trophic levels. Food chain में there are various steps which where transfer of energy transfer होता है food chain में, उसको हम trophic level बोलते हैं. Okay, now don't get confused between trophic level and food chain. Food chain is simply sequence है. See, how can you remember order, O-R-D-E-R, order. ये पेन चल रही है कोई ऑर्डर जिसमें लिविंग क्रिएचर किसी अदर को खाता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाता है, और किसके लिए, एनर्जी के लिए. इट्स सिंपली दैट ऑर्डर है एक जिसमें एक लिविंग क्रिएचर दूसरे लिविंग क्रिएचर को एनर्जी के लिए ईट करता है. दैट्स ऑल अबाउट फूड चेन. इससे ज़्यादा यू डोंट हैव टू मेक योर माइंड इनसाइड इट. और इन ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है कि फूड चेन का एक स्टेप्स है, फूड चेन्स के वेरियस स्टेप्स जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. इन फूड चेन जिसके स्टेप्स में एनर्जी ट्रांसफर होगी इज ट्रॉफिक लेवल. उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. ओके, सो इसमें बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना. फूड चेन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए खाता है, और ट्रॉफिक लेवल मीन्स फूड चेन का ही एक पार्ट जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म. जिस टाइप ऑफ फूड चेन में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. सिंपली अगर हमें याद रखना है तो वी कैन रिमेंबर इट बाय लाइक दिस. हमें अगर कोई भी चीज़ को याद रखना है तो हमें उसके वर्ड्स को याद रखेंगे तो हमें वो डेफिनेशन याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन हम उसको समझेंगे कि फूड चेन अगर हम ऐसे दिमाग में रखेंगे कि फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एनर्जी के लिए. जैसे हम प्लांट है तो प्लांट को रैबिट खाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी तो उसे फूड चेन बोलता है. ऐसे हम एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हमें ज़रूर याद रहेगा. तो लेट्स कंटिन्यू. ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन्स एनर्जी. सन की ओनली 1% ऑफ एनर्जी वो कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनकंडीशनल, यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन. यूनिडायरेक्शनल में बहुत सारी डायरेक्शन. देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब वो बढ़ेगी मीन्स अगर सन की एनर्जी प्लांट ने यूज़ की तो प्लांट को जब रैबिट खाएगा तो रैबिट प्लांट की जितनी एनर्जी है उससे 10% उसकी कम हो जाएगी. ओके, सो लेट्स सी. मैं आपको समझाती हूँ. हियर अगर ये 10,000 कैलोरीज की एनर्जी यूज़ करता है तो अगर इसको जब ये लोग खाएंगे मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जब प्लांट्स को खाएंगे तो उसके 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है 100. तो 100 कैलोरीज, नॉट कैलोरीज, एनर्जी. वी कैन से कैलोरीज, इट्स एनर्जी. तो इसका 10%, या सॉरी मैं पेन के चक्कर में सब इरेज हो जा रहा है. फिर से गलती हो गई.
इसका 10% हो जाएगा 100, तो 100 एनर्जी उनको मिलेगी। अभी 100 का 10% हो जाएगा 10, और इधर जाते जाते वो एनर्जी हो जाएगी 1%। मतलब जब प्लांट कितनी एनर्जी गेन करेगा सन के पास, तो वो एनर्जी गेन करेगा 1,1,0,0,0,0 विच इज़ 10,000 एनर्जी प्लांट गेन करेगा। किसके पास? सन के पास, सूर्य देवता के पास। ओके, यही था इसमें, और कुछ नहीं है। अगर आपको सिंपली समझना है तो मेरे से समझ लो। नहीं, मजाक कर रही हो। मजाक भी करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते वी शुड हैव अ फन, सो हमें समझने में मज़ा आए। 10% लो, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल is 10% of the previous level. As I told you, your energy, if the energy is 1000, and if the energy is 1000 joule, if energy is 1000 joule, तो इसका 10% इसके ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा, मीन्स 100 हो जाए। मतलब उसका सिर्फ 10% एनर्जी वो उसको मिलता है। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि उसको सिर्फ 10% ही मिलता है, तो फिर वो तो दूसरे 90% जाता कहाँ होगा? तो बच्चों, उसका जो 90% एनर्जी होगी, 90% जो एनर्जी होगी वो जाएगी उसके, वो रिप्रोड्यूस करता होगा, उसमें जाएगी। फिर वो भागता होगा, रनिंग। आई हैव रिटन इन हिंदी, बट यू जस्ट डू लाइक रनिंग, आई जस्ट राइट इट रनिंग। रनिंग करता होगा, खाने के लिए भागता होगा। अगर शेर उसके पीछे भागा तो उसे भागना पड़ेगा। रैबिट कितना जंप भी करता है, तो जंप करते करते उसकी एनर्जी कितनी यूज़ होती है, तो उसमें से सिर्फ 10% ही जाएगी। So only 10% of energy is transferred to next trophic level, while 90% of energy is used by present trophic level in its process. Okay, as I told you, वो ऐसे चलता होगा, भागता होगा, खाता होगा, रिप्रोड्यूस करता होगा, तो उसमें वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। Concentration of harmful chemical increases with every trophic level in food chain. हार्मफुल केमिकल जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होती है ट्रॉफिक लेवल बढ़ने से, वैसे वैसे ही हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें इंक्रीज करते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and you must learn it properly. Maximum concentration of such chemical get accumulated in human bodies. कि उसका जो concentration होता है वो accumulate हो जाता है human bodies में. Since human occupy the top level in food chain, yeah, human हमेशा होता है top level पे, it's on top level. So उसे सिर्फ 1% ही मिलती है। सोचो हम कितना खाते हैं, फिर हमें 1% ही मिलती है यार, क्या करते हो आप भी? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और हम देखेंगे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। चेंजेस इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज। चेंज इन एनवायरमेंट अराउंड अस। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ह्यूमन, तो ह्यूमन के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई एनवायरमेंट के लिए। We can say that depletion of the ozone layer and waste decomposal, pollution due to mismanagement of waste decomposal। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, बट लेकिन लॉकडाउन में यार बहुत फ़र्क पड़ा है ओजोन लेयर में। देखना सर्च करके गूगल पे, इट्स उसका जो ब्रेक डाउन जो छेद हो गए थे ना होल, तो वो फिर से फिलअप हो गया। बाद में वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर, that's the problem with humans। depletion of ozone layer deplete हो रहा है। ozone layer is defined as O3 layer of largely found in stratosphere, which is a part of our environment। It is a largely found in layer in stratosphere which is a part of our atmosphere। It is a part of atmosphere from it is
12 to 50 किलोमीटर अबव सी लेवल्स, मतलब इट इज़ अर्थ, और इधर से 12 से 50 किलोमीटर है. इट इज़ अबाउट 12 to 50 किलोमीटर फ्रॉम sea levels. Ozone is deadly poison at a ground level. Ground level पे ozone is deadly poison. Ozone is formed as a result of following photochemical reaction. Ozone is formed by many photochemical reactions happens on Earth. See, we can see in the image that CFC is released from our AC and all. NO2 is released by the planes, और इसको combine करके O3 is formed. Ozone is a protective blanket around Earth which absorbs most of the harmful UV rays. Ozone layer protective blanket है around the sun which protect us from ultraviolet rays, radiations of the sun, thus protecting the living beings of the earth from the health hazard like skin cancer. It protects living organisms from skin cancer, cataract of eyes, weaken immune system, destruction of plants. UV rays is a lots of amount of rays which can destroy plant. This line of ozone layer thickness in Antarctica was first observed in 1985 and was termed as a ozone hole. Yeah. So this is not important, but for information I wrote it. Reason of ozone depletion. Ozone depletion के reason क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFC वो किस में यूज़ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में CFC बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अ सिंथेटिक इनर्ट केमिकल एग्जाम्पल फ्रियॉन विच आर यूज एज रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन जैसे गैस, वो पता है कभी कभी वो ऐसे बोलता है कि रेफ्रिजरेटर में वो गैस फिल करना है, तो वो गैस इज फ्रियॉन गैस. एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है. कॉज द ओजोन डिप्लीशन इन अपर एटमोसफियर. उसका जो अपर हमारा जो एटमोसफियर उसमें ओजोन डिप्लीशन इसकी वजह से हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज CFC यूज़ हो रहा है. देन नाइट्रोजन एंड ऑल दिस ऑल गैस आर हार्मफुल फॉर ओजोन. सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 lakh ओजोन मॉलिक्यूल्स. 1 क्लोरीन एटम, क्लोरीन का एक एटम ओजोन के 1 lakh मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय कर सकता है. UNEP, that is United Nations Environment Program, did an excellent job in for giving an agreement to the free CFC production in 1986. ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि CFC का लेवल वो रेफ्रिजरेटर में कम करने के लिए बोला. तो उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया था. गार्बेज डिस्पोजल हम कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल एंड राइजिंग डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड हैव क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम in the form of waste, garbage accumulation and its disposal, especially in urban areas. तो अगर we all live in cities and all, so cities में क्या होता है कि हम जो डस्टबिन में डालते हैं वो ऐसे ही कहीं पे डस्टबिन वो हमारा कैब ड्राइवर वो ले जाता है, वो एक जगह पे वो उसे इकट्ठा करता है सो दैट वो कहीं पे ऐसे वैसे पड़ा ना रहे. लेकिन गांव में क्या होता है, वो लोग ऐसे ही बाजू के एरिया में या कॉमन प्लॉट या इधर उधर डाल के सब कचरा करते हैं. तो दैट्स उनका वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है. द डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजल कॉमनली यूज्ड अराउंड वर्ल्ड आर वेस्ट डिकम्पोजल. कैसे देखो भाई ये कचरा, तो देखो दिल्ली में कचरे का एक पूरा माउंटेन है. यू कांट इमेजिन, इट्स अ फुल माउंटेन ऑफ ओपन डंपिंग. खुले में फेंक देना, इट्स कॉल्ड ओपन डंपिंग. अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप इन सिलेक्टेड एरिया इन अ टाउन में कोई सिलेक्टेड एरिया में जो कचरा इकट्ठा होता है, इट एक्चुअली कॉज पॉल्यूशन. एक ही जगह पे बहुत सारा कचरा होने की वजह से वो जगह पॉल्यूटेड हो जाती है एंड इट कैन अफेक्ट अदर. जैसे इन आई टोल्ड इन दिल्ली, आई टोल्ड वन एग्जाम्पल, waste are dumped in low living area and
आर कॉम्पैक्ट बाय रोलिंग विथ बुलडोजर। वो एक ही जगह पे ऐसे माउंटेन खड़ा करते कॉम्पैक्ट करते हैं, जैसे इधर सारा पड़ा हुआ है, जैसे इधर इधर कचरा, तो उसे कॉम्पैक्ट करते करते ऐसे ऐसे करते करते एक माउंटेन खड़ा कर दे। बुलडोजर मीन्स वो जो ऐसे लाइक इट इज़ लाइक ऐसे 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 इट लाइक ऐसे वो एक मशीन जैसा नहीं, जेसीबी बोलते हैं, हाँ जेसीबी, इट्स लाइक दैट। पागल हो जाऊंगी मैं आपको समझा रहे नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है आपको समझाने में। आई फील वेरी गुड। Composting. Organic waste are filled in compost pit. It is then covered with a thin layer of soil. After about 3 months, the same garbage filled inside pit change the organic manure. So we all know, सबको पता ही होगा कि वेस्ट मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्ट कैसे करते हैं। सॉइल में डालेंगे, 2-3 महीने के बाद वो मैन्यूर बन जाएगा। इट्स सिंपल। Recycling. Recycle waste. The solid waste is broken down into consistent simple molecules. Solid waste होता है मतलब we can take a paper example, हम पेपर ले सकते हैं, उसको हम छोटे 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 भाग में ऐसे ब्रेक करेंगे, then these material are then used to make a new items. तो वो पेपर को हम उसमें से कोई न्यू आइटम से नहीं ले सकते, लेकिन पेपर को हम फिर से ज्वाइन करके we can make a new paper. बट या उसकी कैपेसिटी उस पहले वाली जितनी नहीं होगी, बट दैन टू वी कैन यूज़ इट फॉर। वैसे भी हम पेज को तो ऐसे लिख के कितने बर्बाद करते। 10th में तो भाई कितना लिखना पड़ता है। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, मेटल, प्लास्टिक, और उसको भी हम मोल्ड, जैसे प्लास्टिक की बॉटल है उसको हम मोल्ड करके वी कैन गिव इट अनदर शेप एंड यूज इट अकॉर्डिंगली। सी आई हैव टेकन इमेज फॉर रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, सॉरी रीयूज़ करो, रिड्यूस करो। रीयूज़ मतलब उसको फिर से यूज़ करो, रिड्यूस मीन्स उसको ब्रेक डाउन करो, रिसाइकल मीन्स उसको फिर से बनाओ और फिर से यूज़ करो। दैट्स ऑल। रीयूज़ अ वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। कोई भी आइटम को दो अगेन एंड अगेन यूज़ करना इज द टेक्निक ऑफ रीयूज़। रीयूज़ मीन्स री मीन्स again, use means use use means use, so again use करना is reuse. Technique of using some item again and again is called reuse. अगर आपको याद रखना है तो सिंपली आपको कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे। पेपर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनवेलप एंड एक्सेट्रा। पेपर को एज आई टोल्ड यू वी कैन यूज़ इट, फिर से हम यूज़ करके उस पर अच्छा वाला पेपर बना सकते हैं, उस पर एनवेलप बना सकते हैं। वी कैन, हाँ या उसमें ऐसा बोल रहे हैं, इट्स टोल्ड, ऐसा बोल रहे हैं दैट, ये हमारा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जब पुराना हो जाए तो पुराने न्यूज़पेपर का तो कौन यूज़ करें, तो फिर हम उससे हमारी जो बुक होती है, हमारी बुक होती है उसको हम कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज एनुअल कवर। दैट्स अबाउट इट। ये है तो हियर इज द एंड। ये एंड है हमारे चैप्टर का। आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर फ्रॉम बायोलॉजी, एंड इफ़ यू वांट समथिंग which I could improve, then please comment, and if you want me to teach you other chapter, then also comment, and please like, share and subscribe. Bye.